Hello students, I hope your CA Foundation examination went off very well and very soon you will be beginning with your CA inter studies. But still we thought we will just discuss the November 20 examination paper with you all. That is the reason why I am releasing this video. तो यहाँ पर मैं ये पेपर के बारे में सारे क्वेश्चंस का एक आपको आइडिया दे दूंगा, एनालिसिस दे दूंगा और थोड़े बहुत जो फाइनल एरियाज है उसको हम रिजॉल्व भी कर लेंगे. So we'll begin with true or false. The very first question was, in case of admission of a new partner in the partnership firm, the profit loss on revaluation is transferred to all the partners in their new profit sharing ratio. The obvious answer is false. Correct. We transfer the revaluation profit loss in old ratio. The reason being, ये जो revaluation होता है वो किसका होता है, वो assets और वो liabilities का होता है जो admission के पहले business में exist कर रहा है. तो अगर admission के पहले ही वो asset liability business में exist कर रहा है तो उसका revaluation का profit loss should go only to the old partners and that too in the old ratio. Then question number 2 was a very very beautiful question. So ICAI ने actually prove कर दिया कि जो लोग module properly read करते हैं, only those people can answer these kind of questions. That has been proved by ICAI beyond doubt. So question में क्या लिखा है कि in the balance sheet of X Limited, preliminary expense amounting to 5 lakhs and securities premium of rupees 35 lakhs are appearing. यानी उसने बैलेंस शीट का बात की है. वो बोलते हैं बैलेंस शीट का एसेट साइड पे फिक्टिशियस एसेट है प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, और बैलेंस शीट का लायबिलिटी में रिजर्व्स एंड सरप्लस का नीचे वो बोलते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम है उसके पास, और वो बोलते हैं द अकाउंटेंट कैन यूज द बैलेंस इन सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट टू राइट ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंस. सो फॉर दिस यू हैव टू रेफर सेक्शन 52 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013. तो सेक्शन 52 में लॉ ने 5 यूजेस दिया है ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम, उसमें से सेकंड वाला यूज इज राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस ये है. लेकिन ये 5 यूजेस के बाद ना आपका मॉड्यूल में ऐसा भी एक सेंटेंस दिया हुआ है, वो लोग ने वहां पे लिखा है कि सर्टेन क्लास ऑफ कंपनीज हुज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंप्लाई विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो उनको लागू होता है, they cannot use securities premium to write off preliminary expenses. ऐसा भी उसमें बोला गया है. So in my opinion इसका आंसर should be partly true and partly false. Alright. Then we go to question number 3. Insurance claim received on account of plant and machinery completely damaged by fire is a capital receipt. The answer is yes, true. It is indeed a capital receipt because plant and machinery है जो हम लोग normal course of business में sell नहीं करते हैं, तो उसके अगेंस्ट अगर इंश्योरेंस का क्लेम मिलता है इट्स अ कैपिटल रिसिप्ट. हैड इट बीन गुड्स आपका डिस्ट्रॉय हो गया और उसके बदले में अगर आपको इंश्योरेंस का क्लेम मिला देन इट वुड बी रेवेन्यू रिसिप्ट, बट राइट नाउ इट इज कैपिटल रिसिप्ट, सो दैट इज ट्रू. थर्ड वन, purchase of furniture and fixtures of rupees 2500 has been debited to general expenses account is an error of omission. The answer is false. This is an error of principle because it's a case of a capital expenditure wrongly treated as a revenue expenditure. That is a fundamental error. So ये error of principle है. Then A Limited is sending goods costing rupees 50,000 to B Limited on consignment basis. मतलब A Limited is the consignor and B Limited is the consignee. The accountant of A Limited is of the opinion that these goods should be sent under a sale invoice. So the obvious answer is false because sending goods on consignment is not sale. It is merely change in possession of goods, not change in ownership. Whereas an invoice is raised only when the goods are sold. So accountant का जो opinion है कि ये goods हम लोग बेचना चाहिए under a sale invoice, that is absolutely false. You have to only send a pro forma invoice, not a sale invoice. Next. Question number 6, again a beautiful question, chapter 1 से connected है. A concern proposes to discontinue its business from December 2020 and decides to dispose of all its plants within a period of 3 months. वो सारे assets को dispose of करना चाहता है within a period of 3 months.
The balance sheet as on 31st December 2020 should continue to indicate the plants at its historical cost, as the assets will be disposed of after the balance sheet date. So now if you read this question very carefully, the one thing is very clear that यहाँ पर एक ऐसा कंपनी का बात हो रहा है जो अपना बिजनेस बंद करके जाने वाला है. तो वो अपना बिजनेस बंद करके जाने वाला है. इट मीन्स गोइंग कंसर्न कंसेप्ट इज नो मोर एप्लीकेबल. दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट नीड्स टू स्ट्राइक टू यू गाइज कि गोइंग कंसर्न कंसेप्ट एप्लीकेबल नहीं है. तो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट एप्लीकेबल नहीं है और वो बोल रहा है कि आने वाला 4 महीने के अंदर सारे एसेट्स को मैं बेचने वाला हूँ. तो ऐसा केस में आज के तारीख में बैलेंस शीट में आप सारे फिक्स्ड एसेट्स को दिखाओगे at net realizable value, because you're going to dispose of all these assets very soon. So you got to show all the assets at net realizable value. That is why उनका जो आंसर है, उनका जो उन्होंने जो किया है वो गलत है. It is false. You will show the assets at net realizable value. Then question B, question 1B. What services can a chartered accountant provide to the society? क्या services वो provide कर सकता है? Again, this is a question straight picked up from your module का chapter 1. Chapter 1 में आपके module में एकदम clearly लिखा है कि chartered accountant का क्या role है towards society. तो वहाँ से आप उसको read करेंगे तो आपको मिल जाएगा. फिर भी to name a few. So first one is like you can see here. As an accountant, वो books of account maintain करता है. He conducts audit of public companies. Audit करके वो audit का एक report release करता है जिसके ऊपर आम जनता का, गवर्नमेंट का, सबका नज़र रहता है. करेक्ट. दे विल कम टू नो कि वो ट्रू एंड फेयर व्यू है कि नहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का. फिजिकल पॉलिसीज फ्रेम करने में ये लोग का बहुत बड़ा हाथ रहता है. वो लोग एडवाइजरी बोर्ड they give advice, they help the government to frame the fiscal policies. उनका ओपिनियन बहुत मैटर करता है. As a management accountant, chartered accountants perform a lot of management accounting problems of the companies to solve करते हैं वो लोग उसको, like working capital problems, control, management of your daily expenses, ये सब planning करके देते हैं वो लोग. Clients को financial advisors देते हैं. So what kind of advisors they give, like where to invest, how to invest, which insurance policy is the best, tax planning. ऐसे बहुत सारा चीज़ एक CA जो है आम आदमी को प्रोवाइड करता है, उनके क्लाइंट्स को प्रोवाइड करता है. इसके अलावा आज के तारीख में बहुत सारे फंक्शंस, होस्ट ऑफ फंक्शंस, अदर फंक्शंस एक CA ऑफर करता है. लाइक सेक्रेटरियल वर्क करता है, वो शेयर रजिस्ट्रेशन का काम करता है. वो लोग कंपनी फॉर्मेशंस में हेल्प करते हैं, लिक्विडेशन में हेल्प करते हैं, डीड फ्रेमिंग में हेल्प करते हैं. इसे वैरायटी ऑफ सर्विसेज है जो आज के तारीख में चार्टर्ड अकाउंटेंट सोसाइटी को प्रोवाइड कर रहा है. सो दिस व्हाट वाज एक्सपेक्टेड इन दैट आंसर. यू कैन रीड इट फ्रॉम योर मॉड्यूल का चैप्टर 1. क्वेश्चन 1C में पूछा है, द फॉलोइंग आर सम ऑफ द ट्रांजैक्शंस ऑफ मेसर्स कमल एंड सन्स फॉर द March 2020. यू आर रिक्वायर्ड टू मेक आउट देयर सेल्स बुक. अभी वो सेल्स बुक बनाने को बोल रहा है तो आपका फोकस शुड बी प्योरली ऑन क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स. दैट्स इट. सो फर्स्ट वन में लिखा है, सोल्ड टू मेसर्स अशोक एंड मुकेश ऑन क्रेडिट 40 shirts at the rate of 900 per 30 trousers at the rate of 1000 per trouser, less trade discount at the rate of 10%. This will definitely come in sales book because उधार पे बेचा आपने, सेल्स बुक में जरूर आएगा. तो अमाउंट कैसा कैलकुलेट, 40 इंटू 900 करने का प्लस 30 इंटू 1000 करने का, ये दोनों को ऐड करने का और जो अमाउंट आएगा उसमें से 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर देना है और वो सेल्स बुक में दिखाने का. सेकेंड पॉइंट में लिखे कि दे हैव सोल्ड फर्नीचर ऑन क्रेडिट. फर्नीचर आप अगर उधार में बेचेगा तो वो क्रेडिट सेल ऑफ एन एसेट है. क्रेडिट सेल ऑफ एन एसेट कैन नॉट कम इन सेल्स बुक, दैट विल कम इन जर्नल प्रॉपर बुक. यू गॉट टू कमेंट कि वो जर्नल प्रॉपर बुक में आएगा. Then sold 15 shirts to Aman at the rate of rupees 750 each for cash. This will come in cash book. So again उसका एक कमेंट कर देने का. तो your solution should have been like this. ये सेल्स बुक का फॉर्मेट है. तो सेल्स बुक में अशोक एंड मुकेश
और वो ट्रेड डिस्काउंट वगैरह माइनस करके दी अमाउंट वर्क्स आउट टू 59,400 वो दिखाने का, दैट्स इट. एंड बाकी दो करने का. नाउ योर आंसर शुड हैव बीन. देन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो क्वेश्चन 2A. सो क्वेश्चन 2 में वो बोलता है कि ऑन 31st March 2020 महेश का कैश बुक शोड अ बैंक ओवरड्राफ्ट ऑफ 98,700. ऑन कंपैरिजन ही फाइंड्स द फॉलोइंग. तो कैश बुक में ओवर मतलब इट इज क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक. करेक्ट. सो क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक दिया है और क्वेश्चन का एंड में उसने बोला है prepare a bank reconciliation statement as on 31st March 2020. So we got to make a BRS. So now credit per cash book है तो we actually make a workings like this and वो workings में हम लोग we put signs. तो cash book में credit balance है मतलब cash book का payment side पे balance है 8900 तो we put minus sign उसके ऊपर. You can see there कि we have put उसके ऊपर माइनस साइन 8900 के ऊपर वी हैव पुट माइनस साइन. बराबर. देन बाजू वाला साइन बिकम्स प्लस एंड देन माइनस एंड देन अगेन प्लस. सो वी फॉलो साइक्लिकल मेथड. सो गोइंग बैक टू द क्वेश्चन नाउ. सो फर्स्ट ट्रांजैक्शन में लिखा है out of total checks of rupees 8900 issued on 27 March, one check of rupees 7,400 was presented for payment on 4th April and other check of rupees 1,500 handed over to a customer was returned by him, and in lieu of that a new check of the same amount was issued to him on 1st April. No entry for the return was made. There are two things that happened there. सबसे पहला पूरे महीने में 8,900 का चेक गॉट इश्यूड और इश्यू करने का कार्यक्रम कौन करता है? बिजनेसमैन करता है. एंड बिजनेसमैन रिकॉर्ड दिस इन द कैश बुक. और ये 8,900 के अंदर दो चीज है. एक चेक है 7,400 का जो प्रेजेंट हुआ 4th अप्रैल को. प्रेजेंट अगर 4th अप्रैल को हुआ मतलब वो पासबुक में 4th अप्रैल को ही आया, मतलब नेक्स्ट मंथ को आया वो पासबुक में. दैट मीन 7,400 सिर्फ ये महीने का कैश बुक में है और पेमेंट साइड पे. दैट इज द फर्स्ट थिंग. 7,400 का बात हो गया. अगला चेक 1,500 का जो है वो आपने इश्यू किया था, लेकिन क्या हो गया उसके साथ? कस्टमर ने वो चेक रिटर्न कर दिया और आपने उसके बदले में नया चेक दिया. अच्छा, नया चेक कभी दिया? 1 अप्रैल को दिया बोलते, मतलब अगला महीने में नया चेक दिया और रिटर्न का एंट्री किया ही नहीं आपने. अगर रिटर्न का एंट्री किया ही नहीं मतलब आज भी आपका कैश बुक में ऐसा ही दिखाई दे रहा है कि आपने 1,500 का चेक इश्यू किया है बस. बिकॉज कस्टमर ने रिटर्न किया, उसका एंट्री आपने किया नहीं वो बोलता है. दैट मीन्स 1,500 इज स्टिल अपियरिंग इन कैश बुक का पेमेंट साइड, लेकिन वो पासबुक में आएगा ही नहीं बिकॉज वो चेक तो प्रेजेंट हुआ ही नहीं. कस्टमर ने वो चेक आपको वापस दे दिया. दैट मीन्स दिस एंटायर 8,900 is appearing in cash book का payment side, but it is not there in passbook का withdrawal side. ऊपर का sign is minus, तो उसको हम लोग BRS में लेस में लिखेंगे, like check issued but not presented and returned. Correct? Next, out of total checks of rupees 6,800 deposited in the bank on 24th March, one check of rupees 2,600 was cleared on 3rd April, मतलब next month. Another check of rupees 500 was returned dishonored by the bank on 4th April, मतलब next month. So कुल मिला के ये महीने में 6,800 का चेक डिपॉजिट किया. कौन डिपॉजिट करता है चेक? बिजनेसमैन डिपॉजिट करता है. मतलब सबसे पहला एंट्री कैश बुक में हुआ. अभी चेक डिपॉजिट किया, इसका मतलब ये है कि बिजनेसमैन रिसीव हुआ रहेगा. तो पहला ये कैश बुक का रिसिप्ट साइड पे रहेगा एवरीथिंग. बराबर. कैश बुक का रिसिप्ट साइड पे रहेगा, मतलब 2,600 भी रिसिप्ट साइड पर है, 500 भी रिसिप्ट साइड पर है और 6,800 में से आप ये दो को निकाल दो. यानी आप 6,800 में से 2,600 और 500 को माइनस कर दो तो आपको बचेगा 3,700. वो भी आपका कैश बुक का रिसिप्ट साइड पर है.
बिकॉज चेक डिपॉजिट हुआ है मतलब आपको चेक रिसीव हुआ है, तो तीनों कैश बुक का रिसिप्ट साइड पे। अच्छा, अभी क्या लिखा है सेकेंड पार्ट में, वो क्या बोल रहा है कि 2600 का चेक क्लियर हुआ अप्रैल में, मतलब 2600 का चेक अगला महीने का पासबुक है, मतलब ये महीने का 2600 नहीं है। 500 का चेक बाउंस हो गया, मतलब 500 भी पासबुक में नहीं है, मतलब बाकी का जो 3700 का चेक है वो आपका पासबुक में है। गेटिंग माई पॉइंट? दैट मीन्स कैश बुक का रिसिप्ट साइड पे ये तीनों चेक्स है, लेकिन पासबुक का डिपॉजिट साइड पे खाली एक चेक है 3700 का। तो ये जो 2600 और 500 है, दोनों के ऊपर का साइन देखिए, आपको दिख रहा है कि वो प्लस है, तो वो ऐड में आएगा। सो ऐड में ऐसा लिखने का, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड एंड रिटर्न डिसऑनर्ड 3100, इस तरह से उसको ऐड में प्रेजेंट करने का। अंडरस्टूड? Alright, next one. Bank charges rupees 35 and bank interest 2860 charged by bank appearing in the passbook are not recorded in the cash book. तो बोलता है कैश बुक में रिकॉर्डेड नहीं है, मतलब वो खाली पासबुक में है, और ये दोनों ही चीज पासबुक का विड्रॉल में रहेगा, बिकॉज बैंक चार्जेस लेता है अपने से, और इंटरेस्ट भी लिखा है कि चार्ज बाय बैंक है। सो बोथ दीज थिंग्स, मतलब 35 एंड 2860 बोथ आर अपियरिंग इन पासबुक का विड्रॉल साइड, एंड यू कैन सी कि ऊपर का साइन इज प्लस, तो ऊपर का साइन इज प्लस मीन्स इट हैज टू कम इन ऐड। सो ऐड में उसको लिखने का, अमाउंट रिकॉर्डेड ओनली इन द पासबुक एंड नॉट इन द कैश बुक, बैंक इंटरेस्ट एंड बैंक चार्जेस। देन a check deposited in his other account rupees 1550 wrongly credited to this account by the bank। मतलब वो क्या बोल रहे थे कि बिजनेसमैन का मल्टीपल अकाउंट्स था सेम बैंक में, मल्टीपल अकाउंट्स था उसके पास, तो ही डिपॉजिटेड चेक इन सम अदर अकाउंट, बट बैंक ने गलती से उसको ये वाला अकाउंट का पासबुक में लिख दिया। दैट मीन्स दिस एंट्री इज अपियरिंग इन योर पासबुक का डिपॉजिट साइड ऑफ दिस अकाउंट, जिसका हम लोग बीआरएस बना रहे हैं, और ये वाला अकाउंट का कैश बुक में तो पक्का रहेगा ही नहीं, बिकॉज वो चेक तो ये अकाउंट में डिपॉजिट हुआ ही नहीं, दूसरे अकाउंट में डिपॉजिट हुआ है। दैट मीन्स ये कैश बुक में नहीं है, इट इज देयर ओनली इन द पासबुक। डिपॉजिट साइड पर है, ऊपर का साइन देखिए, डिपॉजिट के ऊपर का साइन इज माइनस, सो दिस विल कम इन लेस। तो लेस में देखो लिखा है रॉन्ग क्रेडिट गिवन बाय बैंक, ऐसा लिखने का उसको। नेक्स्ट वन वॉज अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल क्वेश्चन। अगेन आईसीआई ने प्रूव किया कि जिन लोग ने मॉड्यूल का सारा क्वेश्चन सॉल्व किया वो ये वाला एडजस्टमेंट कर सकता है। दिस इज देयर इन आईसीआई मॉड्यूल इलस्ट्रेशन 11 ऑफ बीआरएस चैप्टर, यू कैन फाइंड दिस एडजस्टमेंट देयर। A debit of rupees 3500 appearing in the bank statement for an unpaid check returned for being out of date has been redated and deposited in the account again on 5th April। अभी पहला ये ट्रांजैक्शन का मीनिंग क्या है पहला वो समझना बहुत जरूरी है। वो बोलते हैं डेबिट ऑफ रुपीज 3500 अपेयरिंग इन द बैंक स्टेटमेंट फॉर एन अनपेड चेक, करेक्ट? यानी वो बोलता है कि बैंक स्टेटमेंट का डेबिट में 3500, बैंक स्टेटमेंट का डेबिट में 3500 दिख रहा है, क्यों? एक अनपेड और वो रिटर्न हो गया, यानी बाउंस हो गया। क्यों वो बाउंस हो गया? बीइंग आउट ऑफ डेट का मतलब क्या होता है? आउट ऑफ डेट का मतलब ये होता है कि देखो चेक इज वैलिड ओनली फॉर 3 मंथ्स आज के तारीख में, करेक्ट? इफ आई गिव यू अ चेक टुडे, एक डेट डाल के, सो दैट चेक इज वैलिड ओनली फॉर 3 मंथ्स। तो 3 मंथ्स के बाद अगर आप वो चेक डिपॉजिट करोगे तो चेक इज बाउंड टू बाउंस, क्योंकि वो स्टेल चेक हो गया अभी, करेक्ट? सो बीइंग आउट ऑफ डेट वो चेक जो है वो बाउंस हो गया एंड हैज बीन रीडेटेड एंड डिपॉजिटेड इन द बैंक अगेन ऑन 5th April। अभी डिपॉजिटेड इन द बैंक अगेन वर्ड यूज कर रहे हैं, मतलब इसके पहले भी वो चेक डिपॉजिट हुआ था। तो आई विल एक्सप्लेन व्हाट द स्टोरी वाज, कि वो चेक का डेट निकल चुका था, एक्सपायर्ड चेक था,
फिर भी बिजनेसमैन ने क्या किया, वो चेक को डिपॉजिट किया। तो बिजनेसमैन ने वो चेक को डिपॉजिट किया, तो बिजनेसमैन ने क्या किया, कैश बुक का रिसिप्ट साइड पे लिख दिया 3,500 को। यू कैन सी दैट कैश बुक का रिसिप्ट साइड पे 3,500 दिख रहा है, बिजनेसमैन ने लिख दिया उसको। बैंक ने भी क्या किया, सबसे पहला पासबुक का डिपॉजिट साइड पे लिख दिया उसको, बिकॉज बैंक को पहला एहसास नहीं हुआ कि वो चेक का डेट निकल चुका है करके। तो बैंक ने गलती से पासबुक का डिपॉजिट में लिख दिया। उसके बाद द बैंक रियलाइज्ड, अरे ये तो डेट निकल चुका है, ये गलत चेक है, ये चेक एक्सपायर्ड है। तो बैंक ने क्या किया, उसको रिवर्स किया, विड्रॉल में लिख दिया 3,500। बट बिजनेसमैन ने उसका एंट्री को रिवर्स नहीं किया। तो बिजनेसमैन ने उसका एंट्री को रिवर्स नहीं किया, तो ये पासबुक से कट चुका है। आप देख सकते हैं 3,500 पासबुक का डिपॉजिट में भी है, विड्रॉल में भी है। तो पासबुक से कट चुका है, लेकिन वो कैश बुक का रिसिप्ट साइड में अभी भी अपियर हो रहा है, ऊपर का साइन प्लस है, तो ये ऐड में आएगा। आई बात समझ में? इट इज चेक डिपॉजिटेड रिटर्न डिसऑनर्ड। व्हाई इट गॉट डिसऑनर्ड? बिकॉज इट इज आउट ऑफ डेट। ऑफ डेट मतलब स्टील चेक। सो बैंक ने भी पहला गलती किया, बैंक ने पहला क्रेडिट दिया आपको उसका, और उसके बाद बैंक ने उसको डेबिट किया। और बैंक ने डेबिट किया, वो कहां से मालूम पड़ा? फर्स्ट पार्ट में लिखा है, देखो, डेबिट अपेयरिंग इन द पासबुक, इसने लिखा है ना, डेबिट अपेयरिंग इन द बैंक स्टेटमेंट। दैट कैन हैपन ओनली इफ द बैंक वुड हैव क्रेडिटेड फर्स्ट। तो गलती से बैंक ने क्रेडिट कर दिया, उसके बाद बैंक ने उसको डेबिट किया, बट बिजनेसमैन ने उसको रिवर्स नहीं किया कैश बुक में। ऑलराइट, नेक्स्ट, बैंक अलाउड इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट ₹1,000। तो 1,000 रुपीज जो है वो पासबुक का डिपॉजिट में, बिकॉज द बैंक हैज अलाउड, अलाउड मतलब गिवन, बैंक ने आपको दिया इंटरेस्ट। तो पासबुक का डिपॉजिट में है, लेकिन वो कैश बुक में नहीं है, ऊपर का साइन माइनस है, तो वो लेस में आ जाएगा। तो लेस में उसको दिखाने का इस तरह से कि इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट अलाउड बाय बैंक, बराबर। फिर नेक्स्ट, a customer who received a cash discount of 4% on his account of ₹1 lakh paid a check on 20th March. The cashier erroneously entered the gross amount in the bank column of the cash book. एक कस्टमर था, आपको उससे 1 लाख लेने का था, और वो 1 लाख देने को रेडी भी हो गया। तो हमने क्या बोला, ठीक है यार, आप पूरा अमाउंट मेरे को दे रहे हैं, चलो आप 4% डिस्काउंट ले लो। अभी अगर मैंने 4% डिस्काउंट उसको ऑफर किया, मतलब वो चेक कितने का देगा मेरे को? 1 लाख, मतलब 96,000 का चेक। दैट मीन्स मैं कैश बुक में रिसिप्ट साइड पे 96,000 लिखना चाहिए, उतने का चेक मेरे को मिलने वाला है। लेकिन वो क्या बोलता है कि गलती से ग्रॉस अमाउंट लिख दिया, मतलब कैश बुक का रिसिप्ट साइड पे आपने पूरा 1 लाख लिख दिया। समझा? और ऐसा किधर भी नहीं बोला कि वो चेक क्लियर नहीं हुआ है। तो वो चेक क्लियर नहीं हुआ है, इसका मतलब वो पासबुक का डिपॉजिट साइड पर भी है, बट पासबुक का डिपॉजिट साइड पे सिर्फ 96,000 ही है। करेक्ट? तो कैश बुक का रिसिप्ट साइड पे 1 लाख रहेगा पूरा, बट पासबुक का डिपॉजिट साइड पे ओनली 96,000 इज देयर। सो अल्टीमेटली 4,000 रिसिप्ट साइड पे ज्यादा है, ऊपर का साइन प्लस है, दैट विल कम इन ऐड, रॉन्ग अमाउंट एंटर्ड इन कैश बुक, ऐसे हम लिख सकते हैं उसको। And there is one transaction which I missed, the fifth one. A check of ₹800 drawn on this account was wrongly debited in another account by the bank. Drawn मतलब क्या? Issued, मतलब आपने इस अकाउंट में से 800 का चेक इश्यू किया, बट बैंक ने गलती से उसको दूसरा अकाउंट का डेबिट में लिख दिया। तो आपने इस अकाउंट से चेक इश्यू किया, तो आपने क्या किया, आपने कैश बुक का पेमेंट में लिख दिया 800 को, बट बैंक ने दूसरा अकाउंट को डेबिट किया, मतलब ये वाला पासबुक का विड्रॉल में नहीं लिखा बैंक ने। तो ये एंट्री खाली कैश बुक का पेमेंट में है, ऊपर का साइन माइनस है, तो इसके लिए वो 800 लेस में आ जाएगा। पॉइंट नंबर 3 में आप देख सकते हो लेस का। चेक इश्यूड बट रॉन्गली डेबिटेड इन अनदर अकाउंट बाय द बैंक। फाइन। इसके बाद आप BRS को बंद करेंगे, तो आपको फाइनल आंसर 99,945 आएगा। आपने चालू किया था ओवरड्राफ्ट के साथ और आंसर पॉजिटिव आ रहा है, मतलब ये भी ओवरड्राफ्ट ही है। सो यू विल कॉल दिस ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, क्योंकि आपने चालू किया था ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक के साथ।
दिस वॉज योर BRS का डिस्कशन. नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 2B, जहां पर इन्वेंट्रीज का क्वेश्चन है. एंड अगेन स्ट्रेट मॉड्यूल क्वेश्चन, सिर्फ नंबर्स चेंज किया. मतलब ICAI प्रूव कर रहा है कि जो लोग मॉड्यूल बरोबर से पढ़ते हैं उन लोग मेरा एग्जाम बहुत अच्छे नंबर से पास कर सकते हैं. एनीवेज, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्या लिखा है? फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ स्टॉक इन अ बिजनेस वाज डन ऑन 23rd Feb. 23rd Feb को फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ स्टॉक हुआ. एंड द वैल्यू ऑफ स्टॉक वॉज ₹28 lakhs. 28 लाख रुपया वॉज द वैल्यू ऑफ स्टॉक. The following transactions took place from 23rd Feb to 29th Feb. और क्वेश्चन में लास्ट में बोला डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन 29th Feb. यानी आपको 23 तारीख का स्टॉक दिया है, 23rd Feb का स्टॉक आपको दिया है और 29th Feb का स्टॉक आपको ढूंढने का है. मतलब वी आर गोइंग फॉरवर्ड, मतलब फॉरवर्ड कैलकुलेशन करने का है. तो फॉरवर्ड कैलकुलेशन करने का मतलब क्या करना पड़ेगा? 23rd से लेके 29th का बीच में आपने जो भी परचेजेस किया रहेगा उसको ऐड करने का, जो भी सेल्स किया रहेगा उसको माइनस करने का, परचेज रिटर्न को माइनस करने का, सेल्स रिटर्न को ऐड करने का, सिर्फ सेल्स और सेल्स रिटर्न को कॉस्ट प्राइस पे करने का. ये फर्स्ट लॉजिक आपका दिमाग में बिल्ड होना चाहिए. नाउ लेट्स रीड द क्वेश्चन का फर्स्ट पॉइंट. वो बोलते हैं आउट ऑफ गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट गुड्स वर्थ ₹2,30,000 वेर अनसोल्ड. अभी वो गुड्स अगर अनसोल्ड है मतलब गुड्स का ओनर हम लोग है, तो वो गुड्स हमारा स्टॉक में आना ही चाहिए, तो उसको हम ऐड करेंगे. मतलब वी आर एज्यूमिंग दैट कंसाइनमेंट में वो गुड्स पहले ही जा चुके, मतलब 23 तारीख का पहला जा चुका है वो गुड्स. मतलब 23 तारीख का जो स्टॉक आपको दिया है 28 लाख, 28 लाख के अंदर 2,30,000 नहीं है. बट 23 तारीख से लेके 29 तारीख का बीच में आपको ये पता चला अभी कि 2,30,000 का माल अभी तक बिका नहीं है जो कंसाइनी के पास पड़ा है. यानी वो गुड्स का ओनर आप है, तो आपको उसको आपका स्टॉक में लेना है, तो उसको आप ऐड करोगे. नेक्स्ट, परचेजेस ऑफ ₹3 lakhs were made, out of which goods worth ₹1,20,000 were delivered on 5th March. 5th March मतलब नेक्स्ट मंथ. वो बोलता है 3 लाख का माल खरीदा, जिसमें से 1,20,000 का माल अगले महीने में डिलीवर हुआ, ऐसा बोलता है. तो सबसे पहला है ना, दिमाग में उठेगा कि सर ऐड पूरा 3 लाख को करूं कि सर ऐड खाली 1,80,000 को करूं, बिकॉज 1,20,000 का तो अगला महीने में आया, ऐसा बोल रहे हो. दैट विल डिपेंड अपॉन आपको जो स्टॉक पूछा है वो क्या, जस्ट स्टॉक और इज इट फिजिकल स्टॉक. तो आप क्वेश्चन का लास्ट लाइन पढ़ेगा तो क्या लिखा है? डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ स्टॉक. ही इज नॉट टेलिंग फिजिकल स्टॉक. अगर फिजिकल स्टॉक करके बोलता तो मैं 1,80,000 ऐड करता सेकेंड पॉइंट के लिए. बट सिंस ही इज आस्किंग द वैल्यू ऑफ स्टॉक, वी नीड टू ऐड द एंटायर 3 लाख, बिकॉज 3 लाख का गुड्स तो आपने खरीद लिया. तो चाहे वो गुड्स फिजिकली आपके पास आए या ना आए, आप तो वो गुड्स का ओनर है, तो आपका स्टॉक में पूरा 3 लाख आना ही चाहिए. सो 3 lakhs विल बी एडेड. ऑलराइट. पॉइंट नंबर 3. पॉइंट नंबर 3 में लिखा है सेल्स वेर 13,60,000. पूरा महीने में, पूरा महीने क्या बोल रहा हूं मैं, 6 दिन में, मतलब 23rd से लेके 29th का बीच में 13,60,000 का सेल हुआ बोलता है. इसके अंदर 3,20,000 का माल ऐसा है जो आपने अप्रूवल के तौर पे कस्टमर को दिया था, उसका आधा रिटर्न हो गया 29 Feb के पहले, और बाकी का आधा के बारे में कोई इंटीमेशन नहीं बोलता है. और पॉइंट नंबर 4 भी पॉइंट नंबर 3 से कनेक्टेड है. वो बोलते हैं गुड्स आर सोल्ड एट कॉस्ट प्लस 25%. हाउएवर गुड्स कॉस्टिंग ₹2,40,000 हैज बीन सोल्ड फॉर 1,50,000. अभी 2,40,000 का गुड्स अगर 1,50,000 में बेचा है, मतलब 90,000 का लॉस में बेचा है, मतलब ये अबनॉर्मल गुड्स है. एनीवेज, ये सेल्स है और हम लोग कर रहे हैं फॉरवर्ड कैलकुलेशन. तो जो भी गुड्स बिका ना, जो भी गुड्स बिका उसको लेस करना है एट कॉस्ट. मार्क माय वर्ड, जो भी गुड्स बिका. तो कौन सा गुड्स बिका इज द क्वेश्चन.
अभी जो गुड्स आपने अप्रूवल के तौर पे दिया था उसके बारे में वो क्या बोल रहा है, आधा माल तो रिटर्न हो गया 29 तारीख के पहले, यानी आधा माल नहीं बिका। बाकी का आधा के बारे में कोई इंटीमेशन नहीं है, तो हम लोग एज्यूम करेंगे कि नहीं बिका। दैट मीन्स सेल और रिटर्न वाला पूरा 3,20,000 का माल तो बिका ही नहीं। दैट मीन्स उसको लेस करना ही नहीं है और ना ही उसको ऐड करना है, बिकॉज वो गुड्स 23 तारीख का स्टॉक में मेरे पास था बोल के मैंने दिया रहेगा ना अप्रूवल के तौर पे। तो 3,20,000 का माल जो अप्रूवल के तौर पे मैंने दिया 23 तारीख का स्टॉक में मेरे पास था, 23 फेब को मेरे पास था वो, और 29 फेब का स्टॉक में मेरे को वो चाहिए भी, वी वांट इट ऑल्सो। दैट मीन्स एज फार एज अ गुड सेंट ऑन अप्रूवल वाला पार्ट इज कंसर्न, उसका कुछ भी इफेक्ट करना नहीं है, बिकॉज जिस दिन का स्टॉक मेरे को दिया है उसके अंदर वो है, एंड द स्टॉक विच आई एम फाइंडिंग मेरे को उसके अंदर वो चाहिए। दैट मीन्स नो इफेक्ट ऑफ दैट। रही बात द डिफेक्टिव गुड्स का, दैट गॉट सोल्ड राइट, तो उसको मेरे को लेस करना पड़ेगा एट कॉस्ट, एंड द कॉस्ट इज 2,40,000। अभी टोटल सेल्स में से अप्रूवल सेल्स को माइनस कर देने का, डिफेक्टिव गुड्स का सेल्स को माइनस कर देने का, तो यू विल बी लेफ्ट आउट विद नॉर्मल सेल्स। वो नॉर्मल सेल्स का कॉस्ट प्राइस ढूंढने का, और कॉस्ट प्राइस ढूंढने के बाद उसको भी लेस करने का। तो यू हैव टू मेक अ वर्किंग नोट समथिंग लाइक दिस। यू कैन सी हियर आई हैव मेड अ वर्किंग नोट। सो आपका टोटल सेल्स इज 13,60,000। यू ब्रेक इट इन 3 पार्ट्स, अप्रूवल सेल्स, डैमेज गुड्स वाला सेल्स, एंड सेल ऑफ नॉर्मल गुड्स। अप्रूवल सेल का कुछ भी नहीं करना है, बिकॉज वो गुड्स बिकी, हाफ रिटर्न बारे में अप्रूवल नहीं है, मीन्स वेर एज्यूमिंग इट इज नॉट सोल्ड। जो नॉर्मल से जो अबनॉर्मल सेल्स है वो हुआ है, तो उसको लेस करना पड़ेगा एट कॉस्ट, एंड द कॉस्ट इज 2,40,000। नॉर्मल गुड्स जो बैलेंसिंग फिगर है, मतलब 13,60,000 में से मैंने 3,20,000 और 1,50,000 को माइनस किया, सो आई गेट द सेल ऑफ नॉर्मल गुड्स, उसको भी लेस करना है एट कॉस्ट। एंड हाउ विल यू फाइंड आउट द कॉस्ट, उसका एक वर्किंग नोट मैंने करके दिखाया था, वहां पर प्रॉफिट मार्जिन दिया था। सो प्रॉफिट मार्जिन वॉज 25% ऑन कॉस्ट, लेकिन ये तो सेल्स है तो कन्वर्जन करना पड़ेगा, तो 1/4 ऑन कॉस्ट, दैट इज 1/5 ऑन सेल्स। सो 8,90,000 का 1/5 करने का, तो द प्रॉफिट कम्स टू 1,78,000, एंड 1,78,000 को 8,90,000 में से माइनस करेंगे तो यू गेट द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, जो अपने को लेस करना है। तो योर सोल्यूशन विल लुक लाइक दिस। ऑलराइट, that was your inventory valuation का discussion. Now question number 3A is consignment वाला question. Question था easy, but थोड़ा सा वो लोग ने words में खेला, तो जिसने भी घाई घाई में पढ़ा होगा ना, उनको थोड़ा तकलीफ हुआ रहेगा। मिस्टेक का चांसेस बहुत हाई उसमें। तो कहां पर उन्होंने गेम खेला अपने साथ, वो फर्स्ट 2 लाइन पे खेल खेला है उन लोगों ने। लेट्स रीड द क्वेश्चन, क्या बोला है देखो। माया कंसाइंड 400 बॉक्सेस ऑफ शेविंग ब्रश, ईच बॉक्स कंटेनिंग 100 शेविंग ब्रशेस। हर बॉक्स में 100 ब्रश था बोलते हैं। ऐसा 400 बॉक्सेस भेजा। द बॉक्स वॉज 3,000, तो आपको सीधा 400 इंटू 3,000 करने का है। बहुत जन 400 इंटू 100 इंटू 3,000 किया रहेगा, तो वो लोग रॉन्ग हुआ रहेगा। करेक्ट रीडिंग, आई सेड ना, आई ऑलवेज मेंटेन रीडिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो फर्स्ट लाइन पे लिखा है 400 बॉक्स, सेकेंड लाइन पे देखो कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच बॉक्स, बॉक्स बॉक्स मैचिंग मैचिंग, तो 400 इंटू 300 करने 3,000 करने का, that is the cost of goods that got sent on consignment basis. Okay, anyways आगे लिखा है Maya spent 500 per box as cartage, freight and insurance and forwarding charges. One box was lost on the way and Maya lodged insurance claim with the insurance company and could get rupees 2,700 as claim on average basis. Consignee took delivery of the rest of the boxes and spent rupees 199,500 on non-recurring expense and 112,500 on recurring expenses. Closing stock का valuation के टाइम पे ये सब काम आता है अपने को। He sold 370 boxes. Look at
He sold 370 boxes at the rate of 65 per shaving brush. He's not telling 65 per box. He's telling 65 per shaving brush. Again they have played. तो 65 पर शेविंग ब्रश को पहला इंटू 100 ब्रशेस करने का, तो एक बॉक्स में कितना मिलेगा? 65 इंटू 100 करेगा तो एक बॉक्स का मिलेगा अमाउंट, उसको मल्टीप्लाई करने का 370 से, तो 370 बॉक्सेस का सेलिंग प्राइस मिलेगा. इधर सब वो लोग ने आईसीआई ने अपने साथ मस्ती की. सो दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड. मतलब सी द इंस्टीट्यूट इज वेरी क्लियर. मालूम है वो रीडिंग एबिलिटी आपका टेस्ट करता है. एनीवेज, he was entitled to 2% commission on sales plus 1% del credit commission. You are required to calculate, you are required to prepare consignment account. So consignment account बनाने का, तो consignment account में क्या क्या आएगा? पहली बार डेबिट साइड पे आएगा 2 goods sent on consignment which will be 400 boxes into 3,000. करेक्ट. बाद में माया ने फ्रेट का खर्चा किया 500 पर बॉक्स, सो वो डेबिट साइड पे आएगा टू बैंक 500 into how many boxes? 400 boxes. One box was lost on the way and Maya lodged claim with the insurance company and could get 2700 as claim on average basis. तो ये जो 2700 मिला इंश्योरेंस वाले से, वो कंसाइनमेंट अकाउंट में दिखाने की जरूरत नहीं है. व्हाट यू कैन डू इज स्ट्रेट फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ वन बॉक्स दैट गॉट लॉस्ट. सो हाउ विल यू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ वन बॉक्स दैट गॉट लॉस्ट? तो उसका सेकेंड लाइन पे देखो, द बेसिक कॉस्ट ऑफ एवरी बॉक्स इज 3000 and expense of consigner per box is 500. कंसाइनी का खर्चा लेना नहीं है इस कैलकुलेशन में because the boxes have got lost in transit. That means the cost of the box that got lost is 3500. एक ही बॉक्स गया, उसका कॉस्ट 3500 है, तो वो 3500 को हम लोग कंसाइनमेंट अकाउंट का क्रेडिट में लिख देंगे बाय गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट या बाय लॉस इन ट्रांजिट करके. ऑल्टरनेटिवली आप क्या कर सकते हो? कंसाइनमेंट का क्रेडिट साइड पे यू कैन राइट बाय इंश्योरेंस क्लेम 2700 एंड राइट बाय लॉस इन ट्रांजिट द बैलेंस अमाउंट दैट इज 800. सो इवेंचुअली कंसाइनमेंट का क्रेडिट में 3500 आएगा. उसको कैसा लिखने का इज योर चॉइस. वन चॉइस इज यू राइट बाय लॉस इन ट्रांजिट स्ट्रेट 3500 रुपया, और एक ऑप्शन ये यू राइट बाय इंश्योरेंस क्लेम 2700 एंड देन बाय लॉस इन ट्रांजिट द बैलेंस अमाउंट 800 रुपया. कैसा भी लिखो चलेगा. Then consider the delivery of the goods, the rest of the boxes, and spend 199,500 on non-recurring expense and 1,12,500 on recurring expense. So ये consignment का debit में आ जाएगा, टू consignee करके recurring non-recurring. Then he sold 370 boxes at the rate of 65 per shaving brush. तो 370 into 65 into 100 because per box में 100 shaving brush. सो इंटू 100 करने का, तो वो सेल्स आएगा, उसको कंसाइनमेंट का क्रेडिट में लिखने का बाय कंसाइनी करके. फिर कमीशन, दो टाइप का कमीशन है, ऑर्डिनरी डेल क्रेड. दोनों कमीशन टोटल सेल्स पे करना है बिकॉज यू नो यू हैव रेड इट मेनी टाइम्स दैट नथिंग सेड डेल क्रेड कमीशन टोटल सेल्स पे कैलकुलेट होता है. सो 3% स्ट्रेट आप कर सकते हो ऑन टोटल सेल्स वैल्यू और कंसाइनमेंट का डेबिट में लिख सकते हो उसको. नाउ कम्स वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक. 400 boxes were sent from here. One was lost in transit. तो कंसाइनी के पास पहुंचा था 399 boxes. Out of that 399 boxes, he has sold 370 boxes. मतलब 29 boxes का closing stock है जिसका valuation करना है आपको. So your answer should look like this. This is your consignment account. Your consignment account will look like this. And your workings, ये है आपका क्लोजिंग स्टॉक का वर्किंग्स, टू लुक लाइक दिस. एक बॉक्स ट्रांजिट में चला गया, मतलब कंसाइनी ने जो नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस किया वो सिर्फ 399 बॉक्सेस में किया होगा बिकॉज एक बॉक्स तो रास्ते में चला गया, तो कंसाइनी के पास पहुंचा 399 बॉक्सेस. Okay, so this was your consignment ka solution. Then
The next question was your account current. So account current के बारे में बोला है, तो from the following particulars prepare account current as sent by Mr. Raju to Mr. Sunil. तो by Mr. Raju to Mr. Sunil means the heading will be Mr. Sunil in account current with Mr. Raju as on 31st October. And question में आप फर्स्ट ट्रांजेक्शन देखिएगा जुलाई है, तो 1 जुलाई से लेके 31 अक्टूबर का अकाउंट करंट अपने को बनाने का है. इसमें की पॉइंट्स क्या है कि जो 1 जुलाई वाला ट्रांजैक्शन है उसका ड्यू डेट विल बी 30th जून. और काउंटिंग कैसा करने का आपको तो पता होगा. जुलाई में 31 डेज है, अगस्त में 31 डेज है, सितंबर में 30 डेज है, अक्टूबर में 31 डेज है. ऐसे आपको डेज कैलकुलेट करते जाना है. करेक्ट. सो बैलेंस ड्यू टू सुनील, तो वो डेबिट साइड पे आएगा. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके, बैलेंस ड्यू फ्रॉम सुनील, सॉरी, बैलेंस ब्रॉट डाउन करके आएगा. एंड नंबर ऑफ डेज इफ यू कैलकुलेट, तो जुलाई का 31 प्लस अगस्त का 31 प्लस सितंबर का 30 प्लस अक्टूबर का 31, नंबर ऑफ डेज आपको मिल जाएगा. कुछ 123 डेज के करीब आएगा. यस. एंड देन ऐसा एक एक करके ट्रांजैक्शन दिए. मेरे ख्याल से काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है. सोल्ड गुड्स तो 2 सेल्स करके आएगा. अगस्त में 31 डेज, 15 माइनस करो 16 डेज ऑफ अगस्त, ऑफ 1 डेज ऑफ अक्टूबर, ऐसा करके उसका डेज कैलकुलेट करने का. फिर जो सेल 22 सितंबर को हुआ, तो सितंबर में दिन होते हैं वहाँ से 22 निकाल दीजिए, तो 8 डेज ऑफ सितंबर एंड 31 डेज ऑफ अक्टूबर. ऐसा करके अपने को हर एक ट्रांजैक्शन का डेज कैलकुलेट करना है. अभी क्या मेथड फॉलो करने का लोगों ने बोला है कि प्रोडक्ट मेथड फॉलो करना है. सो प्रोडक्ट मेथड फॉलो करके आप यानी यू मेक अ कॉलम कॉल्ड प्रोडक्ट एंड हर चीज का प्रोडक्ट निकालने का. हाउ विल यू फाइंड आउट द प्रोडक्ट? अमाउंट इनटू डेज करके प्रोडक्ट मिलेगा. और प्रोडक्ट मिलने के बाद लास्ट में आप क्या करोगे? प्रोडक्ट कॉलम को बंद करना है, बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट निकालना है और बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट के हिसाब से आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट कर देना है. करेक्ट. दैट वाज योर account current. Then we move to the next average due date. So average due date का क्वेश्चन में आप देखेगा तो बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेएबल करके दिया है. करेक्ट. हर एक बिल का क्या डेट को है, तो स्टेप नंबर हर बिल का ड्यू डेट्स आप कैलकुलेट करो. हर दिन का ड्यू डेट्स आप कैलकुलेट करने के बाद आप क्या करना चाहिए? सबसे अर्लीएस्ट ड्यू डेट को नॉर्मली बेस डेट लेते हैं. तो यहां पर वो 9th जून वाला जो बिल्स पेएबल है वो 1 मंथ का ही है. तो 1 मंथ आप गिनेंगे तो 9 जुलाई आता है प्लस 3 दिन ग्रेस, तो 12 जुलाई दैट बिकम्स द अर्लीएस्ट ड्यू डेट ऑफ ऑल दीज बिल्स. सो 12 जुलाई को बेस डेट लेने का. और जो बेस डेट आप लेगा ना, दैट विल बी कॉमन फॉर बिल्स रिसीवेबल एज वेल एज बिल्स पेएबल बोथ. तो बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेएबल दोनों के लिए सेम बेस डेट रहेगा. यू कैन टेक एनी डेट एज बेस डेट. अगर आपको आपका बर्थडे पसंद है, आपका बर्थ डेट को बेस डेट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है. बट नॉर्मली स्पीकिंग क्या करते हैं ऐसे वाले क्वेश्चंस में, जितने भी बिल्स है वो सारे बिल्स में अर्लीएस्ट ड्यू डेट को हम लोग बेस डेट लेते हैं. और अर्लीएस्ट ड्यू डेट को बेस डेट लेने के बाद हम क्या करेंगे? उसको सॉल्व करेंगे. इंपॉर्टेंट पॉइंट वहां पर क्या नोट करना है आपको कि 15 अगस्त पब्लिक हॉलिडे है. जो बिल 15 अगस्त को ड्यू होगा, सो डिक्लेयर्ड पब्लिक हॉलिडे रहेगा तो 1 डे बिफोर देना पड़ेगा, मतलब 14 अगस्त उसका रेट हो जाएगा. और 6 सितंबर इमरजेंसी हॉलिडे बोल के डिक्लेयर हुआ है, मतलब जो बिल 6 सितंबर को ड्यू होएगा उसको 7 सितंबर लेने. करेक्ट. तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ योर एवरेज ड्यू डेट. आपका आंसर्स कुछ इस तरह नजर आएगा. एज यू कैन सी मैंने 12 जुलाई को बेस डेट लिया है, वो हिसाब से सारे कैलकुलेशंस किए. उसके बाद आपको वो डिफरेंस इन प्रोडक्ट अपॉन डिफरेंस इन अमाउंट करना है. तो वो करेंगे आप, तो आपको मिल जाएगा एवरेज ड्यू डेट. सो 12 जुलाई प्लस 74 डेज ऐसा आता है वो.
टू बी वेरी एग्जैक्ट 73.854 डेज आ रहा है. So it is 12 July plus 74 days. So ADD comes to 24th September. So 24th September को मिस्टर राकेश को 4100 नेट में, मतलब रिसीवेबल माइनस पेएबल, नेट में अगर 4100 मिले, neither party will lose interest. That's the meaning of that. फिर अकोमोडेशन का क्वेश्चन पहली बार आईसीएआई ने, इतने सारे अटेम्प्ट में आईसीएआई ने कभी भी अकोमोडेशन का क्वेश्चन नहीं पूछा. दिस इज द फर्स्ट टाइम आईसीएआई हैज आस्क्ड बिल्स ऑफ एक्सचेंज में अकोमोडेशन बिल का क्वेश्चन. सो सुरेश ड्रॉज अ बिल. लास्ट लाइन पढ़ते हैं क्या पूछा है क्वेश्चन का. तो बोलते हैं पास जर्नल एंट्रीज फॉर द अबाउट ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ सुरेश. सो वी कुड रीड क्वेश्चन एज इफ वी आर सुरेश. सो आई ड्रू अ बिल फॉर ₹15,000 ऑन अनूप ऑन 15th April. तो एंट्री हो जाएगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू अनूप. Anup returns the bill to me after accepting the same. That's fair enough. I got the bill discounted for 14,700. So it is bank debit, discounting charges account debit to bills receivable, and remits 1/3 of the amount to Anup. तो मेरे को जो भी अमाउंट मिला उसका 1/3 मैंने अनूप को दिया. तो इट इज अनूप अकाउंट डेबिट. तो बिल का 1/3 इज 15,000 का 1/3 मतलब 5,000. तो अनूप अकाउंट डेबिट. तो प्रोपोर्शनेट डिस्काउंटिंग चार्जेस 300 का, डिस्काउंटिंग चार्जेस 100 रुपया, एंड टू कैश बैंक बाकी का 4900. तो अब तक का सिचुएशन ऐसा है कि मैंने अनूप के ऊपर बिल ड्रॉ किया और 1/3 अमाउंट मैंने अनूप को दिया, मतलब 2/3 अमाउंट मैं एंजॉय कर रहा है. तो मेरा ड्यूटी ये है कि ड्यू डेट जब ही आएगा तो मैं मेरा 2/3 अमाउंट अनूप को दे दूं, बिकॉज अनूप के पास बैंक जाने वाला है ऑन द ड्यू डेट और पूरा 15,000 मांगने वाला है. बट 15,000 का 2/3 तो मैं एंजॉय कर रहा है. तो माई ड्यूटी टू गिव अनूप. बट अभी हुआ क्या? ऑन द ड्यू डेट आई फेल टू रिमिट द अमाउंट ड्यू टू अनूप. मैं मेरा अमाउंट देना नहीं दे पाया मैं. बट अनूप, बैंक तो अनूप से मांगने वाला ही पूरा 15,000. तो इसके लिए अनूप ने क्या किया, मेरे ऊपर बिल ड्रॉ किया 17,500 का, और मैंने वो बिल एक्सेप्ट किया. तो मैंने वो बिल एक्सेप्ट किया तो मैं एंट्री करेगा अनूप अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल 17,500. ये जो एंट्री मैं करता ना, ये आइस ब्रेकर एंट्री होता है, बिकॉज ये एंट्री के बाद अनूप का बैलेंस जो है मेरे बुक्स में वो सीधा उल्टा हो जाता है. अभी तक उसके अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस रहते हैं, बट ये एंट्री करने के बाद अनूप का अकाउंट में डेबिट बैलेंस आना शुरू हो जाता है. उसका रीजन ये है कि अनूप एक्चुअली मेरे पे 10,000 का बिल ड्रॉ करना चाहिए था, बिकॉज ये शुड रिकवर 10,000 फ्रॉम मी, है ना. मेरा शेयर में नहीं दिया ना उसको, बट 17,500 का बिल ड्रॉ किया अनूप ने मेरे ऊपर. अच्छा, और उसके बाद क्या हुआ, अनूप ने वो बिल को डिस्काउंट किया, तो उसका तो मैं एंट्री करूंगा नहीं. और अनूप ने मेरे को रिमिट किया 2825. अभी अनूप ने मेरे को रिमिट किया 2825, तो जो भी अमाउंट मेरे को अनूप देगा वो तो चार्जेस काट के ही देगा ना. सो अकोमोडेशन बिल का सबसे इंपॉर्टेंट एरिया क्या होता है कि ये सेकंड वाला बिल का डिस्काउंटिंग चार्जेस कैलकुलेट कैसा करने का. उसके लिए पहला ये अवेयरनेस, सेकंड वाला बिल ड्रॉ क्यों हुआ. सेकंड वाला बिल ड्रॉ क्यों हुआ, बिकॉज फर्स्ट वाला बिल का मेरा शेयर का पैसा मैंने अनूप को दिया नहीं. दैट मीन्स सेकेंड वाला बिल का अगर बात करेंगे तो उसमें सबसे पहला 10,000 का बेनिफिट तो मेरे को ही मिला, बिकॉज आई गॉट अ चांस टू एक्सटेंड माई 10,000 का पेमेंट बाय वर्च्यू ऑफ ही ड्रॉइंग अ बिल ऑन मी. प्लस सेकेंड वाला बिल में से अनूप ने मेरे को 2825 और दिया. दैट मीन्स टोटल सेकेंड वाला बिल अगर आप बात करेंगे 17,500 का बिल था, करेक्ट, उसमें से 12,825 नेट तो मैंने एंजॉय किया. व्हाई डू आई से नेट, बिकॉज 2825 का जो रेमिटेंस उसने मेरे को दिया ना, वो चार्जेस काट के ही दिया रहेगा. सो पहला ये दिमाग में आपको क्लैरिटी होना चाहिए कि भाई सेकेंड वाला बिल में से 12,825 नेट मैं यानी सुरेश आई एंजॉयड. So accordingly the charges I need to bear. तो how to calculate that charges? तो उसके लिए ना ऐसा एक वर्किंग नोट है.
ये वर्किंग नोट ही इंपॉर्टेंट है, एंट्रीज तो आप फिर भी कर लेंगे. तो वर्किंग नोट देखो कैसा है. तो क्या लिखा है देखो वहां पे, फाइंडिंग नेट अमाउंट एंजॉयड बाय सुरेश इन सेकंड बिल. तो फर्स्ट बिल का अमाउंट जो नहीं दिया 10,000 और प्लस रेमिटेंस 2825 का. टोटल अमाउंट एंजॉयड बाय सुरेश इज 12,825, दैट इज नेट आफ्टर चार्जेस. अभी स्टेप 2 क्या किया देखो मैंने, ग्रॉस और नेट बोल के दो कॉलम बनाया. सेकेंड बिल टोटल 17,500 का था एंड दैट गॉट डिस्काउंटेड फॉर 17,100. अगर नेट में मेरे को 12,825 का एंजॉयमेंट हुआ है तो मेरा ग्रॉस कितना था. तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यू फाइंड के माई ग्रॉस कम्स टू 13,125. इसमें से मेरे को मिला 12,825, मतलब 300 इज द डिस्काउंटिंग चार्जेस दैट आई नीड टू बेयर. ये आपको समझ गया तो अकोमोडेशन वाला वो वाला क्वेश्चन में और कुछ है ही नहीं. आई होप दैट कैलकुलेशन वॉज वेरी क्लियर टू यू. देन वी मूव टू द नेक्स्ट, दैट इज पार्टनरशिप. अगेन अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन. Absolutely no challenge in that question. So Messrs TB is a partnership firm with the partners A, B and C sharing profits and 2:5 उनका बैलेंस शीट बना के दिया है. सो बैलेंस शीट में भी कुछ भी जॉइंट लाइफ पॉलिसी नहीं था, कुछ नहीं, मतलब वेरी वेरी इजी क्वेश्चन. एडजस्टमेंट में लिखा है इट वॉज म्यूचुअली एग्रीड दैट बी विल रिटायर फ्रॉम द पार्टनरशिप and in that place Mr. D will be admitted with effect from 1st July 2020. So एक पार्टनर एग्जिट हो रहा है और एक पार्टनर आ रहा है. मॉड्यूल क्वेश्चन, ऐसा वाला क्वेश्चन आपने मॉड्यूल में देखा होगा. So goodwill of the firm was valued at 3 lakhs due to the firm's location advantage, but the same will not appear as an asset in the books of the reconstituted firm. So same will not appear in the as an asset बुक्स ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म. मतलब वो क्या बोल रहे हैं, गुडविल को रेज राइट ऑफ कर दो, मतलब गुडविल का एडजस्टमेंट कर दो थ्रू कैपिटल अकाउंट्स. कैपिटल अकाउंट के थ्रू करना है आपको. देन प्लांट एंड मशीनरी आर टू बी वैल्यूड एट 95% एंड 80% रेस्पेक्टिवली ऑफ द बैलेंस शीट वैल्यूज. वो तो बहुत ईजी है, आपने किया ही होगा, कुछ तकलीफ नहीं रहेगा आपको उसमें. Investments are taken over by retiring partner at 46,000. You can check the book value of investment was 42,000. That was taken over at 46,000, means 4,000 का revaluation profit है जो credit side पे आना चाहिए revaluation account का. Trade receivables are considered good only up to 85%. The balancing of the balance sheet figure, the balance is considered to be bad, मतलब वो loss है 15%, वो revaluation का debit side पे आएगा. In the reconstituted firm, total capital would be 4 lakhs, which will be contributed by A, C and D in the new profit sharing ratio, which is 3:4:3. So new ratio दिया है, तो using this you can calculate the sacrifice ratio, because old ratio भी दिया है question में. Sacrifice ratio के हिसाब से आप adjustment 1 भी कर सकते हो, goodwill adjustment. Using sacrifice ratio also you can do. And the amount due to the retiring partner shall be transferred to his loan account. Correct? सो रिटायरिंग पार्टनर को जो भी अमाउंट देना वो करना करके बोला है, और नया पार्टनर ने कितना कैपिटल लाया वो दिया नहीं है, बट एडजस्टमेंट सी से अपने को मिल जाएगा कि नया कैपिटल का कैपिटल कितना रहना चाहिए. करेक्ट? सो दैट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन. सो दिस इज हाउ योर आंसर विल लुक. यू कैन हैव अ लुक इनटू इट, योर आंसर्स. ये आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट इस तरह दिखेगा. ये आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, 4 कॉलम्स. और ये गुडविल का एडजस्टमेंट. 4 पार्टनर्स है तो 4 पार्टनर्स के बीच में एडजस्टमेंट किया हमने. टोटल कैपिटल कितना होना चाहिए दिया था, तो वो हिसाब से हमने कैलकुलेट किया और उसको कैपिटल अकाउंट का डेबिट में लिख दिया, टू बैलेंस कैरिड डाउन करके, और वो हिसाब से हमने बाय कैश का फिगर ढूंढा. सो आप डी के कॉलम पे देखिए बाय कैश 2,10,000 नज़र आ रहा है आपको. 2,10,000 इज बेसिकली जो उसका कैपिटल था 1,20,000 प्लस गुडविल का अमाउंट जो लाना चाहिए. करेक्ट? देन वी मूव टू एनपीओ वाला क्वेश्चन. अगेन मॉड्यूल क्वेश्चन, ओनली फिगर्स चेंज्ड. एक एडजस्टमेंट भी इधर का उधर नहीं किया उन्होंने.
तो वापस ICAI ने प्रूव कर दिया कि भाई मेरा मॉड्यूल पढ़ो। एडमिशन भी ऐसा ही था और रिटायरमेंट का क्वेश्चन भी ऐसा ही था और ये भी सेम। मतलब मेरा जिसने मॉड्यूल स्टडी मटेरियल ICAI का अच्छे से सॉल्व किया रहेगा 30 मार्क्स तो 100% मिलेगा पेपर में, इजी एकदम, केक वॉक। एनीवेज, तो दिस क्वेश्चन NPO का, यहाँ पर एक कॉलेज का क्वेश्चन है वो। सो वो लोग ने पूछा है उसमें कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाइए और बैलेंस शीट बनाइए। तो इतना बड़ा सम तो मैं डिस्कस नहीं करूँगा, बट इसका जो मेन चीज़ है मैं उसी पे फोकस करना चाहूँगा। तो ये क्वेश्चन में मेन चीज़ क्या है, बराबर है। तो मेन चीज़ ये है कि वहाँ पर आप ट्रायल बैलेंस में देखिए, आप नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा स्टॉक ऑफ स्टोर्स एंड सप्लाईज ओपनिंग, परचेज ऑफ स्टोर्स एंड सप्लाईज, बराबर। ये दो चीज़ है जो इम्पोर्टेंट है उसमें। फिर आप देख सकते हो कि इसके ऊपर देयर इज सम कॉलेज स्टोर्स सेल्स करके है 7,60,000। ये सब हाईलाइट, इसको कैसा डील करना है इज व्हाट आई एम गोइंग टू टीच यू। और बाद में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन करके दी है, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर। सो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ट्रायल बैलेंस का अंदर मौजूद है। आई होप यू अंडरस्टैंड। क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस दिया है, NPO में नॉर्मली क्वेश्चन में रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट होता है, यहाँ पर प्रॉपर ट्रायल बैलेंस दिया है। और ट्रायल बैलेंस का अंदर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट है। इसका मतलब आपका जो फिक्स्ड एसेट्स है वो क्वेश्चन में दे आर एट कॉस्ट। इसका मतलब बिल्डिंग के सामने जो वैल्यू दी है ट्रायल बैलेंस में वो कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग है। प्लांट एंड मशीनरी के सामने जो वैल्यू दी है दैट इज द कॉस्ट ऑफ द प्लांट एंड मशीनरी। एंड फर्नीचर के बाद में जो वैल्यू दी है कॉस्ट ऑफ फर्नीचर, बिकॉज ट्रायल बैलेंस में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मौजूद है। और ये कुछ नया नहीं है, आपने डेप्रिसिएशन नाम का चैप्टर किया हुआ है, वहाँ पर आपने देखा रहेगा कि व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज ओपन द एसेट्स अकाउंट विल बी एट कॉस्ट, फिक्स्ड एसेट अकाउंट विल बी एट कॉस्ट, आपने पढ़ा है। तो वही कॉन्सेप्ट मैं दोहरा रहा हूँ, करेक्ट। अभी एडजस्टमेंट नंबर 1 में आप देखिए वो बोल रहा है मटेरियल्स एंड सप्लाइड्स कंज्यूम्ड, कंजम्पशन स्ट्रेट दे दिया है, मतलब ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक करके उसने दे दिया है आपको। तो यही फिगर को अपने को एक्सपेंडिचर में लिख देना है। अब अगर यही फिगर को सीधा एक्सपेंडिचर में लिखना है तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टोर्स एंड सप्लाईज दी, परचेज ऑफ स्टोर्स एंड सप्लाईज दी है, उसको कहीं लिखना नहीं है आपको। उसको इस्तेमाल जरूर करना है कुछ और कैलकुलेट करने को, बट उसको आपके आंसर में कहीं लिखना नहीं है। क्यों लिखना नहीं है? बिकॉज एडजस्टमेंट 1 में आपको स्ट्रेट कंज्यूम दे दी। अरे कोई तुमको ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक करके दे रहा है तो अच्छा है ना, तो वही ले लो। काय को तुम ओपनिंग स्टॉक का पीछे दौड़ रहे अलग सा, परचेज का पीछे दौड़ रहे अलग सा, जब कोई आपको करके दे रहा है रेडीमेड तो वही लेंगे ना हम लोग। तो ये जो एडजस्टमेंट ए में जो फिगर्स है उसको उठा के सीधा एक्सपेंडिचर में आपको लिख देने का। और ट्रायल बैलेंस का अंदर जो ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टोर्स एंड सप्लाईज करके दिए है और परचेज ऑफ स्टोर्स एंड सप्लाईज करके दिए है, उसको तुमको एक्सपेंडिचर में नहीं लिखना है। तो फिर सर उसको रख के क्या करने का, 2 मिनट में बोलूंगा मैं आपको। आप सीधा अभी एडजस्टमेंट आ जाइए, तो एडजस्टमेंट सी में आपको पता चलेगा कि भाई स्टोर्स सेलिंग प्राइस आर फिक्स्ड to give a net profit of 15% on selling price। 15% सेल पे कमाता है। अभी तुम प्रॉफिट कमाता है वही तुम्हारा इनकम है ना। तो ट्रायल बैलेंस में तो स्टोर सेल्स बोल के दिया है, देखो देयर इज वन नेम कॉल्ड कॉलेज स्टोर सेल 7,60,000, यू कैन सी। उसको आप इनकम में मत लिखो, आप उसका 15% कैलकुलेट करो, दैट 15% इज दैट प्रॉफिट, और वो प्रॉफिट को ही आप इनकम में लिखो। सर फिर इसको करने का क्या, इसको हम रख के क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ स्टोर्स दैट गॉट सोल्ड ये ढूंढेंगे। तो कैसा करेंगे, 7,60,000 का 15% आपका प्रॉफिट है, तो 15% को 7,60,000 में से माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, कॉस्ट ऑफ स्टोर्स दैट गॉट सोल्ड वो मिलेगा। क्यों चाहिए वो, हमें इसलिए चाहिए बिकॉज क्वेश्चन में आप देखेंगे ना एडजस्टमेंट में किधर भी
क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टोर्स नहीं दिया है, बट क्लोजिंग स्टॉक चाहिए ना, बिकॉज बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक आएगा ना. तो वी नीड टू फाइंड आउट द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टोर्स एंड मटीरियल्स. अभी सवाल ये है कि हाउ टू फाइंड आउट द क्लोजिंग स्टॉक. तो उसके लिए आपका दिमाग में एक लॉजिक रहना चाहिए. वो लॉजिक ये है कि अपने पास जो है उसी में से हम खाएंगे, मतलब कंज्यूम करेंगे, उसी में से बेचेंगे और उसी में से बचेगा भी. पहला ये लॉजिक आपके दिमाग में क्लियर रहना चाहिए. सो वॉट एवर वी हैव विथ अस, ओनली दैट विल गेट कंज्यूम्ड. Out of that, some portion will get consumed. Out of that, some portion will be sold. Out of that, some portion will remain in your closing stock. That is what you have to understand. So what is there with me? That is the question. तो ट्रायल बैलेंस में आप देखेंगे तो ओपनिंग स्टॉक दिया है स्टोर्स का 3,10,000, परचेजेस दिए 8,20,000, दोनों को ऐड कर लो तो 11,30,000 का तुम्हारे पास स्टोर्स एंड सप्लाईज था. तो आई एम टेलिंग कि जो भी हुआ वो 11,30,000 में से ही हुआ. 11,30,000 में से ही तुमने कंज्यूम किया, 11,30,000 में से ही तुमने बेचा और 11,30,000 का एक हिस्सा स्टॉक में बाकी भी रहेगा. कितना कंज्यूम किया? एडजस्टमेंट 1 में एकदम थाली में रख के दिया है, ये एग्जामिनर ने बोला ये लो. कितना कंज्यूम किया है? स्ट्रेट फॉरवर्ड दिया है. कितना बिका? उसका सेलिंग प्राइस ट्रायल बैलेंस में था 7,60,000. प्रॉफिट मार्जिन 15% है, आपने को मालूम है. वो 15% प्रॉफिट मार्जिन को आप माइनस कर देंगे तो आपको मिल जाएगा कॉस्ट. तो कितना बिका उसका कॉस्ट मिल गया. तो टोटल में से जो कंज्यूम हो गया उसको माइनस कर दो, जो बिका उसको माइनस कर दो, तो आपको मिल जाएगा ऐसा चीज जो बिका भी नहीं और कंज्यूम भी नहीं हुआ, मतलब वो तुम्हारे क्लोजिंग स्टॉक के अंदर रहेगा. यानी आप ऐसा एक वर्किंग नोट बनाएंगे. आप देखिए So माफ कीजिएगा, I don't have the working note type with me, but I'll just tell once again. So the opening stock of stores is 3,10,000, purchase is 8,20,000, so 3,10,000 plus 8,20,000 करेंगे तो you get 11,30,000 का stores which is there available for consumption as well as sale. Out of this adjustment 1 में ये जो 52 plus 145 plus 78 plus 24 that has got consumed, उसको माइनस कर दो. फिर 7,60,000 तो सेल्स था, उसका 15% प्रॉफिट माइनस करके जो कॉस्ट आएगा उसको भी आप ये 11,30,000 में से माइनस कर लेंगे तो आपको क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टोर्स मिल जाएगा और क्लोजिंग स्टॉक को आप जो है बैलेंस शीट में दिखाएंगे. द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टोर्स विल अपीयर इन द बैलेंस शीट. ये क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टोर्स एंड सप्लाईज 1,85,000 आपका नजर आएगा आफ्टर यू मेक दैट वर्किंग नोट. सो वर्किंग नोट का स्ट्रक्चर क्लियर रखो. विल स्टार्ट विद द ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टोर. जो ट्रायल बैलेंस में यू विल ऐड दी परचेजेस, तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? टोटल क्वांटिटी अवेलेबल मिलेगा. इसमें से कितना कंज्यूम्ड है उसको माइनस कर दो, जो एडजस्टमेंट 1 में रेडीमेड दिया है. कितना सोल्ड है उसका जो कॉस्ट उसको माइनस कर दो, तो अपने आप आपको वो चीज मिलेगा जो कंज्यूम भी नहीं हुआ और सेल भी नहीं हुआ, एंड दैट इज 1,85,000 जो बैलेंस शीट में आपको दिखाना पड़ेगा. सिर्फ इतना आपको इंपॉर्टेंट चीज याद में रखना कि जो सेल हुआ उसको कॉस्ट पे माइनस करना है. तो कॉस्ट कैसा मिलेगा? ट्रायल बैलेंस का अंदर 7,60,000 सेलिंग प्राइस है कॉलेज स्टोर सेल्स करके, और वो 7,60,000 में से 15% प्रॉफिट माइनस करेंगे तो कॉस्ट मिलेगा. फाइन. इसके अलावा एनपीओ का सम में अगला पॉइंट जो इंपॉर्टेंट था वो है डेप्रिसिएशन वाला पॉइंट. डेप्री आपने को स्ट्रेट लाइन बेसिस पे करने को बोला है, तो स्ट्रेट लाइन बेसिस मतलब ओरिजिनल कॉस्ट पे कैलकुलेट करने को बोला है. तो मैंने आपको बोला कि ट्रायल बैलेंस का अंदर जो बिल्डिंग मशीनरी और फर्नीचर का फिगर है वो ओरिजिनल कॉस्ट है, उसी का 5%, 10% और 10% आपको कैलकुलेट करना है, तो डेप्री का अमाउंट तैयार हो जाएगा. और ये डेप्री को आप क्या करोगे?
एक्यूमुलेटेड डेप्री का फिगर में ऐड करोगे, बिकॉज आप जब डेप्री करोगे करंट ईयर में, तो डेप्री करने का वजह से आपका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है वो बढ़ जाएगा. एक्यूमुलेटेड डेप्री विल इंक्रीज. करेक्ट. तो एक्यूमुलेटेड डेप्री में इसको ऐड करने का, दैट इज द फर्स्ट इफेक्ट दैट विल डू. और फिर जो करंट ईयर का डेप्री है उसको एक्सपेंडिचर में लिखने का. मोटर व्हीकल का आप बात करेंगे तो ट्रायल बैलेंस में आप देखेंगे तो मोटर व्हीकल का तो एक्यूमुलेटेड डेप्री था ही नहीं. इसका मतलब यह है कि मोटर व्हीकल आपने करंट फाइनेंशियल ईयर में ही परचेज किया होगा. दैट इज व्हाई यू डोंट हैव एक्यूमुलेटेड डेप्री ऑफ मोटर व्हीकल अपीयरिंग इन द ट्रायल बैलेंस. दैट इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ दैट. यू शुड नो ऑल दिस. मैं इसके लिए बता रहा है. तो प्रेजेंटेशन देखो बैलेंस शीट में कैसा किया है मैंने. कैसी मैंने बिल्डिंग करके लिखा है, और बिल्डिंग में पहला मैंने कॉस्ट लिखा 15,50,000 जो ट्रायल बैलेंस में दिया था. फिर लेस प्रोविजन फॉर डेप्री करके किया है. 4,90,000 ट्रायल बैलेंस का अंदर था प्रोविजन फॉर डेप्री करके. 77500 दिख रहा है आपको, दैट इज करंट ईयर का डेप्रिसिएशन जो 15,50,000 का 5% करके मेरे को मिला. और वो 77,500 को मैंने 4,90,000 में ऐड करके 567500 टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्री निकाला, और उसको मैंने बिल्डिंग से माइनस करके बिल्डिंग का अमाउंट को आउटर कॉलम पे शिफ्ट किया. और ये 77500 को जो है यू कैन फाइंड के मैंने एक्सपेंडिचर में लिखा है. देखो टू डेप्रिसिएशन बोल्ड में देखो दिख रहा है, बिल्डिंग 77500. तो एक्सपेंडिचर में हमने को लिखा है. एग्रीड. फाइन. अच्छा, नाउ वी मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन का डिस्कशन. रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का डिस्कशन करते हैं. टाइप 3 वाला क्वेश्चन था. टाइप 3 वाला क्वेश्चन है वो कैसा मालूम पड़ा आपने को. क्वेश्चन का थर्ड लाइन पे लिखा है नेक्स्ट ईयर द फॉलोइंग एरर्स वर डिस्कवर्ड. टाइप 3 का क्वेश्चन है. टाइप 3 का ब्यूटी क्या है कि जहां पर भी नॉमिनल अकाउंट इन्वॉल्व है वी गॉट टू यूज P&L एडजस्टमेंट अकाउंट. तो फर्स्ट 3 लाइन में क्या लिखा है, वो बोलते हैं ट्रायल बैलेंस बनाया, ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हुआ, बट फिर भी इन लोग फाइनल अकाउंट्स बना दिया, और नेक्स्ट ईयर में आने का ये सब गलती मिला उन लोग को. फर्स्ट वन, रिपेयर्स मेड ड्यूरिंग द ईयर डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट. अभी रिपेयर्स का ब्यूटी क्या है, नेचर ऑफ रिपेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है. इफ द रिपेयर वॉज डन टू इंक्रीज द एफिशिएंसी, कैपेसिटी, लाइफ, परफॉर्मेंस ऑफ द बिल्डिंग, देन द रिपेयर्स विल बी क्लासिफाइड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर. If it is routine repairs, then we'll classify the repairs as revenue expenditure. Now, वहाँ पे they have just told repairs to building. The nature of repairs has not been specified. अब nature of repairs not specified है, तो we have to assume कि ये routine repairs है, मतलब ये revenue expenditure है ऐसा मानने का. तो revenue expenditure है तो repairs ही debit होना चाहिए था, but building को debit कर दिया, तो this is error of principle. It's a case of revenue expenditure treated as capital expenditure. The wrong entry that got passed was repairs to cash. Sorry, wrong entry that got passed was building to cash. The correct entry is repairs to cash. वो हिसाब से आप रिवर्स फाइनली आपको मिलेगा आंसर repairs to building. But repairs being a nominal account, so you will write P&L adjustment account debit to building. That is the answer पहला वाले का. Second one, the addition to the freight column in the purchase journal was short by 1500. तो freight column of purchase journal मतलब वो freight inward का बात कर रहा है. वो बोलते हैं freight inward का टोटलिंग में 1500 रुपया कम हो गया, तो अरिथमेटिकल मिस्टेक है, तो इट्स अ वन साइडेड एरर. तो freight inward में 1500 कम है, मतलब एक एक्सपेंस अकाउंट में 1500 कम है, तो एक्सपेंस को बढ़ाने का है, तो freight inward को डेबिट करना पड़ेगा. So the entry will be freight inward account debit to suspense, यानी P&L adjustment account debit to suspense. Suspense account क्यों आया, because वो one sided error है इसके लिए. Then goods of the value of rupees 1050 returned by a customer Rani and Company has been posted to the debit of Rani and Company account and also to sales returns account. अभी फर्स्ट लाइन पे लिखा है रिटर्न्ड बाय कस्टमर. अभी रिटर्न्ड बाय कस्टमर है मतलब वो सेल्स रिटर्न है, और लास्ट में बोला है कि भाई हमने इसको पोस्ट किया है, हमने इसको डेबिट किया है रानी एंड कंपनी को भी और सेल्स एंड रिटर्न्स को भी.
अभी सेल्स एंड सेल्स रिटर्न को भी, सेल्स रिटर्न को डेबिट किया, वो सही किया, बिकॉज फर्स्ट पार्ट में बोला है ना कि कस्टमर ने गुड्स रिटर्न किया है करके, तो कस्टमर ने अगर गुड्स रिटर्न किया है तो सेल्स रिटर्न अकाउंट को डेबिट तो करना ही चाहिए था, उसमें कोई दो राह नहीं है। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट को डेबिट किया, दैट इज परफेक्ट। रानी एंड कंपनी को क्रेडिट करना चाहिए था, लेकिन रानी एंड कंपनी को भी डेबिट किया बोलते हैं, मतलब सेल्स भी डेबिट हो गया, रानी एंड कंपनी भी डेबिट हो गया, क्रेडिट तो कुछ भी नहीं हुआ। तो इट्स अ वन साइडेड एरर एंड गड़बड़ इज देयर इन रानी एंड कंपनी अकाउंट। रानी एंड कंपनी को क्रेडिट करने के बजाय आपने डेबिट कर दिया, तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा, डबल अमाउंट से क्रेडिट करना पड़ेगा। तो रानी एंड कंपनी अकाउंट को क्रेडिट करने का और सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करने का, बट दैट इज 2100। सस्पेंस अकाउंट क्यों आया, एरर है। So it will be suspense account debit to Rani and Company 2100. Next, sundry items of furniture sold for rupees 30,000 has been entered in the sales book, total of which has been posted to sales account. अरे तुमने फर्नीचर सेल किया, मतलब तुमने एक एसेट को सेल किया, तो तुम कैसा उसको सेल्स बुक में लिख सकता है? यू कैन नॉट राइट ऑफ कैपिटल रिसीट। आपने उसको सेल्स बुक में लिख के यू हैव टेकन इट एज अ रेवेन्यू रिसिप्ट। सो वंस अगेन इट इज एरर ऑफ प्रिंसिपल, इट्स अ टू साइडेड एरर। करेक्ट एंट्री ऑफ दैट ट्रांजैक्शन वाज cash to furniture या XYZ debit to furniture. The wrong entry has been done is XYZ account debit to sales. Wrong को reverse करो, sales account debit to XYZ. तो expert is expert cut हो जाएगा, तो finally बचेगा आपको sales account debit to furniture, which will be P&L adjustment account debit to furniture. Then a bill of exchange. A bill of exchange received from Raja and Company for rupees 20,000 has been returned by the bank as dishonored and has been credited to the bank account and debited to bill receivable. अभी आपको बिल मिला है राजा एंड कंपनी से, और वो बिल अगर डिसऑनर होता है तो राजा एंड कंपनी को डेबिट करना चाहिए, लेकिन वो बोलता है, लास्ट लाइन पे लिखा है बिल रिसीवेबल को डेबिट किया। करेक्ट, तो डेबिट करना चाहिए था राजा एंड कंपनी को, बट डेबिट कर दिया बिल रिसीवेबल को। क्रेडिट तो बैंक को ही करना चाहिए, तो बैंक को ही किया भी है, बिकॉज आपने वो बिल बैंक को दिया था। Correct. The wrong entry which got lost is receivable account debit to bank. The correct entry was Raja and Company account debit to bank. Wrong को reverse कर दो, bank debit to Raja and Company, bank will get cut. Finally बचेगा bill receivable account debit to Raja and Company. इसके बाद what you will do is you will make suspense account. Suspense account बनाएंगे तो आपको opening balance मिलेगा, which was the original difference in your trial balance. And then you will make P&L adjustment account, और P&L adjustment account का जो बैलेंस है you will transfer it to capital account. तो suspense account will appear like this. तो by balance brought down करके 600 मिलेगा आपको, which is the original difference in trial balance. ट्रायल बैलेंस में 600 का फर्क था उनका, जो क्वेश्चन का फर्स्ट 3 लाइन पे लिखा था कि फर्क था ट्रायल बैलेंस में। एंड P&L adjustment account में by capital मिलेगा, यानी आपको लास्ट करना पड़ेगा, which will be capital account to P&L adjustment. Then the next question, once again, module question, copy paste and numbers. Module question copy pasted with different numbers. तो 3 चीज पूछा है वो क्वेश्चन में, और बोलता है अमाउंट ऑफ सैलरीज दैट विल बी चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 19। चलो ये बिठाओ कि दिमाग में कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो एक्रूअल बेसिस पे बेस्ड है। तो एक्रूअल बेसिस पे बेस्ड है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 12 महीने का सैलरीज आएगा ही आएगा, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट सैलरी हैज बीन पेड और नॉट। तो करंट ईयर का सैलरी जो भी है उसका 12 मंथ्स का अमाउंट जो भी है हैज टू कम इन P&L अकाउंट। तो सवाल ये है कि व्हाट इज करंट ईयर का सैलरीज। तो क्वेश्चन का सेकेंड लाइन पे देखो लिखा है, एट द स्टार्ट ऑफ 2019 द कंपनी हैज रेज्ड द सैलरीज बाय 10% एंड अभी का सैलरी 44,000 है बोलता है। और क्वेश्चन का फर्स्ट लाइन पे ये लिखा है कि 9 वर्कर है, तो 9 वर्कर इंटू 44,000 करेगा तो करंट ईयर का वर्कर लोग का सैलरी मिल जाएगा 12 महीने का, इंटू 12 मंथ्स भी करना पड़ेगा आपको। 9 वर्कर्स इंटू 44,000 पर मंथ इंटू 12 मंथ्स, दैट विल गिव यू वर्कर का 12 महीने का सैलरी। इसके अलावा सेकेंड पैराग्राफ में ये भी लिखा है कि 1 जुलाई 2019 को दो ट्रेनीज को हायर किया इन्होंने,
और ट्रेनीज को 21,000 पर मंथ सैलरी दे रहा है. 21,000 पर मंथ इंटू 2 ट्रेनीज, दैट इज 42,000 पर मंथ मल्टीप्लाइड बाय जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 मंथ्स. अभी दिसंबर एंडिंग है, कहां से मालूम पड़ा? सब क्वेश्चन 1 में बोला दिसंबर एंडिंग है. सो ट्रेनी का 6 महीने का पगार, दैट विल बी योर salaries will be debited to P&L account as per accrual basis. So it will be, in case of workers, 9 workers into 44,000 per month into 12 months, and trainees, 2 trainees into 21,000 per month into 6 months. That will be the amount of salary that will get debited to P&L regardless of the fact it is actually paid or not. सब क्वेश्चन 2 में बोला है कि एक्चुअल सैलरीज पेड ड्यूरिंग 2019. अभी हाउ डू यू फाइंड आउट दैट? सो क्वेश्चन में सेकेंड पैराग्राफ का सेकेंड लाइन पे एक बहुत बढ़िया सेंटेंस है. सेकेंड लाइन पे लिखा है सेकेंड पैराग्राफ का, द वर्क फोर्स आर पेड सैलरीज ऑन द फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ एवरी मंथ, 1 month in arrears, so that सैलरी फॉर जनवरी इज इन द फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ फेब एक्सेट्रा. तो जनवरी का पगार फेब में मिलेगा, फेब का पगार मार्च में मिलेगा, मार्च का पगार अप्रैल में मिलेगा, एंड सो ऑन. इसका मतलब पिछला साल का दिसंबर महीने का पगार ये साल का 1 जनवरी को पे हुआ रहेगा. करेक्ट? और ये साल का दिसंबर महीने का पगार ये साल में पे नहीं हुआ रहेगा. तो क्या करने का? सब क्वेश्चन 1 में जो आंसर मिला आपको वो क्या है? करंट ईयर का 12 महीने का सैलरी है, उसमें से 1 महीने का दिसंबर महीने का सैलरी आपने पे नहीं किया है करंट ईयर का, उसको माइनस कर दो. लास्ट ईयर का दिसंबर महीने का सैलरी आपने ये साल में पे किया रहेगा, उसको ऐड कर दो. तो आपको कितना सैलरी करंट ईयर में पे किया हो मिल जाएगा. मीन्स करंट ईयर का 1 मंथ का आउटस्टैंडिंग को माइनस कर दो, लास्ट ईयर का 1 मंथ का आउटस्टैंडिंग को ऐड करो. अभी देखने वाला बात इंपॉर्टेंट है कि करंट ईयर में वर्कर भी है, ट्रेनी भी है. तो करंट ईयर का 1 मंथ का आउटस्टैंडिंग में वर्कर भी रहेगा, ट्रेनी भी रहेगा. बट लास्ट ईयर का 1 मंथ का आउटस्टैंडिंग में खाली वर्कर लोग रहेगा, वो भी उनका पगार इस 40,000. क्वेश्चन का फर्स्ट लाइन पे लिखा है कि पिछले साल में उनका पगार वॉज 40,000 ओनली. सब क्वेश्चन 3 वॉज वेरी इजी. आउटस्टैंडिंग सैलरी पूछा है 31 दिसंबर 2019 का, तो करंट ईयर का 1 महीने का पगार जो आउटस्टैंडिंग है वही लिखना है. तो योर आंसर विल लुक लाइक दिस. तो आपका आंसर इस तरह नजर आएगा. ऑलराइट, सी पार्ट अगेन मॉड्यूल क्वेश्चन. सेम क्वेश्चन इज देयर इन द मॉड्यूल, नंबर्स अलग, बस उतना ही फर्क है. सो फॉलोइंग आर द मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट प्रोवाइडेड बाय मेसर्स शिवराम related to financial year 1920. There are certain figures missing in these accounts. कुछ figures missing है बोलते हैं. तो लाइक रॉ मटेरियल्स का अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक दिया है, क्रेडिटर्स दिया है, कंज्यूम नहीं दिया है, क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया है उसने. क्रेडिटर्स का अकाउंट में 3 चीज दिया है, एक चीज मिसिंग है. और मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में कुछ चीज दिया है उसने. रॉ मटेरियल्स का फिगर मिसिंग है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में. और बाद में एडिशनल इंफॉर्मेशन में कुछ 3 इंफॉर्मेशन अपने को दिया हुआ है. और पूछा क्या है? वो बोलता है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रिवाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट एंड रॉ मटेरियल्स अकाउंट. वो बोलते हैं नया मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाओ और रॉ मटेरियल्स अकाउंट बनाओ बोलते हैं. करेक्ट? तो हाउ टू स्टार्ट? So the best thing to do is you prepare creditors account first, because creditors account में 4 में से 3 इंफॉर्मेशन है आपके पास. तो क्रेडिटर्स का अकाउंट को बंद करने का तो क्रेडिट साइड पे फर्क आएगा, एंड दैट हैज टू बी रॉ मटेरियल्स. हाउ डू आई नो दैट? बिकॉज अब रॉ मटेरियल्स का अकाउंट देखिएगा ना, वहां पे 2 क्रेडिटर्स बोल के एक फिगर मिसिंग है. तो अगर रॉ मटेरियल में 2 क्रेडिटर्स करके एक एंट्री है तो क्रेडिटर्स के अकाउंट में आना ही पड़ेगा ना बाय रॉ मटेरियल्स. तो क्रेडिटर्स का 3 चीज है, बाय रॉ मटेरियल मिसिंग है, तो वो पहला ढूंढ लो. तो यू विल फाइंड के क्रेडिटर्स में आपको बाय रॉ मटेरियल्स 14,40,000 मिलेगा. उसको लेके जाने का रॉ मटेरियल्स के अकाउंट में, तो 2 क्रेडिटर्स बोल के वहां पे लिख देने का. ठीक है?
फिर भी आपका रॉ मटेरियल का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होएगा, बिकॉज रॉ मटेरियल्स के अकाउंट में दो चीज मिसिंग है, एक रॉ मटेरियल्स कंज्यूम मिसिंग है और क्लोजिंग स्टॉक भी मिसिंग है, दोनों आपको ढूंढना है। तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट रॉ मटेरियल कंज्यूम मिसिंग है, तो क्रेडिट माइनस डेबिट करके वो मिल सकता है। लेकिन उसने क्या कर दिया, वो बोलता है कि नहीं 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 ऐसा मत करो, बिकॉज वो बोल रहा है कि मशीनरी का फिगर में गड़बड़ है, करेक्ट, वेजेस का फिगर में गड़बड़ है, ऐसा सब बोल रहे हो, करेक्ट। मशीनरी का फिगर में गड़बड़ है, वेजेस का फिगर में गड़बड़ है, एक्सपेंसेस का फिगर में गड़बड़ है, ऐसा सब क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो अगर मशीनरी का फिगर में गड़बड़ है, वेजेस का फिगर में गड़बड़ है, एक्सपेंस का फिगर में गड़बड़ है, मतलब मैं क्रेडिट माइनस डेबिट करके रॉ मटेरियल्स कंज्यूम का अमाउंट ढूंढ नहीं सकता हूं। दैट इज नॉट पॉसिबल। आई कैन नॉट डू क्रेडिट माइनस डेबिट एंड फाइंड रॉ मटेरियल्स कंज्यूम का अमाउंट। गॉट द पॉइंट। तो पहला क्या करना पड़ेगा मेरे को, वेजेस का फिगर को ठीक करना पड़ेगा। तो कैसा ठीक करेंगे, तो वेजेस के बारे में क्या बोला, सेकंड पॉइंट में लिखा है, देखो वेजेस के अंदर क्या है, फैक्ट्री वर्कर का वेजेस है वो अच्छा है, लेकिन ऑफिस लेबर का वेजेस है वो गलत है ना। तो मेरे को वेजेस में से 50K माइनस करना पड़ेगा। बाद में वो क्या बोलता है कि एक पॉइंट नंबर 1 में लिखा है कि मैंने मशीन परचेज किया 12 लाख का 1 अप्रैल को, साल का पहले ही दिन को, उसको बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं किया। अरे तूने मशीनरी को ही बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया, मतलब मशीन का डेप्री भी रिकॉर्ड नहीं किया रहेगा, इसका मतलब तेरा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में 2 डेप्री का फिगर गलत है। तो 2 डेप्री में तेरे को क्या करना पड़ेगा, मशीन का डेप्री को ऐड करना पड़ेगा, सिंपल। सो 12 लाख का मशीनरी है, उसका 15% कैलकुलेट करेंगे तो 1,80,000 आएगा। 1,80,000 आपको ऐड करना पड़ेगा इन योर डेप्री का अमाउंट। अच्छा, फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस के बारे में कुछ बोला है, वो बोलता है उसके अंदर इलेक्ट्रिक चार्जेस है 80,000 रुपया, जिसका 25% ऑफिस का है, मतलब बाकी का फैक्ट्री का है, बट जो ऑफिस वाला अमाउंट है वो निकालना पड़ेगा। तो 80,000 का देंगे तो 20,000 आएगा, वो 20,000 को आपको क्या करना पड़ेगा, ये डायरेक्ट एक्सपेंस 249 से माइनस करना पड़ेगा, ये पहली बात है। फ्यूल चार्जेस है जो कि मतलब पेट्रोल डीजल वगैरह वगैरह कोल, वो सब फैक्ट्री में यूज होता है। फ्रेट इनवर्ड्स भी अच्छा है। डिलीवरी चार्जेस टू कस्टमर गलत है, वो नहीं रहना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग, वो डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, वो सेलिंग एक्सपेंस है वो। सो आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस करना पड़ेगा। तो ये सब करेगा तो आप वेजेस का फिगर, डेप्री का फिगर, डायरेक्ट एक्सपेंस का फिगर सुधरेगा। अभी टिपिकली व्हेन वी मेक मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट ना, तो बाय ट्रेडिंग इज बैलेंसिंग फिगर ऑलवेज। तो अगर आपका वेजेस का फिगर गलत है, डेप्री का फिगर गलत है, डायरेक्ट एक्सपेंस का फिगर गलत है, तो बाय ट्रेडिंग का फिगर भी गलत ही रहेगा वहां पे। तो जो भी चीज डेबिट में आप करोगे ना, मतलब वेजेस से आपने 50 माइनस, तो बाय ट्रेडिंग में से 50 माइनस करना पड़ेगा। आपने डेबिट में डेप्री में 1,80,000 ऐड किया, तो बाय ट्रेडिंग में 1,80,000 ऐड करो। डायरेक्ट एक्स में 2 चीज माइनस किया, तो वहां भी माइनस करो, तो बाय ट्रेडिंग वाला फिगर ठीक होएगा। उसके बाद आप ये 2 रॉ मटेरियल्स वाला फिगर लेके आओ, बैलेंसिंग फिगर। मीन्स आफ्टर मेकिंग क्रेडिटर्स अकाउंट यू विल मेक मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, एंड मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में से आपको रॉ मटेरियल्स कंज्यूम मिलेगा, बैलेंसिंग फिगर। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में जो रॉ मटेरियल रहता है वो कंज्यूम रहता है, उसको लेके जाएगा आप रॉ मटेरियल्स के अकाउंट में, तो आपको क्लोजिंग स्टॉक मिलेगा इस बैलेंसिंग फिगर। दैट इज हाउ यू विल सॉल्व दैट क्वेश्चन। Then we move to question number 6, the last question. Shares. What a question. What a question. एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन दे दिया ICAI ने। ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं, प्रो रेटा नहीं, अलॉटमेंट में एरियर्स नहीं, इशू एट पार। नाइस क्वेश्चन। ऑल शेयर्स गॉट रीइश्यूड। सो आई थिंक ये वाला क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से आप लोग ने बहुत ही आसानी से सॉल्व किया होगा। द कंपनी इशू 20,000 शेयर्स, पीपल, और लिखा है 4 इंस्टॉलमेंट्स के बाद ऑल द शेयर्स वे सब्सक्राइब, करेक्ट, एंड पेमेंट्स भी मिलते गया एक्सेप्ट मिस्टर बर्ड। मिस्टर बर्ड ने आपको फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया।
और उसका 300 शेयर फोरफीट किया, अभी फाइनल कॉल के बाद फोरफीट किया, तब अमाउंट कॉल्ड अप विल बी 10 रुपीज। सो इक्विटी शेयर कैपिटल को 10 रुपीज से डेबिट करना है आपको, प्रीमियम तो है ही नहीं। उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, मतलब 2 कॉल्स इन एरियर्स इज 300 शेयर इंटू 5 रुपीज, 4+1। और एप्लीकेशन का 2 अमेंडमेंट का 3 वो जाएगा शेयर फॉर फीचर में, तो 2 शेयर फॉर फीचर 300 इंटू 5 जो उसने दिया। फिर वो बोलते हैं सारे 300 शेयर को रीइश्यू भी किए और 2 रुपए डिस्काउंट में रीइश्यू किया, मतलब 8 रुपए के बाद में रीइश्यू किया, मतलब 2 रुपए का लॉस हुआ आपको। सो बैंक डेबिट 300 शेयर इंटू 8 करेंगे, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट 300 शेयर इंटू 2 करेंगे, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 300 शेयर इंटू 10 कर देंगे। और रीइश्यू के बाद में यू विल ट्रांसफर अमाउंट टू कैपिटल रिजर्व, तो इट विल बी शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, एंड दैट विल बी बेसिकली आपने ग्रॉस हर एक शेयर का पीछे 5 कमाया था, एंड री इशू में हर एक शेयर का पीछे 2 रुपये आपने गवाया, मतलब नेट में 3 रुपया पर शेयर कमाया, एंड दिस 3 रुपया पर शेयर ऑन 300 शेयर मतलब 900 रुपया विल गो टू कैपिटल रिजर्व। वेरी इजी क्वेश्चन, बैलेंस शीट भी नहीं पूछा है। वाओ, सो नाइस। उसके बाद डिबेंचर्स वाला क्वेश्चन व्हाट टू से। आप लोग थक गया रहेगा ये वीडियो में बार बार बोल रहा हूं सेम चीज, मॉड्यूल क्वेश्चन फिर से, सिर्फ नंबर चेंज किया है, सिर्फ नंबर, और कुछ चेंज ही नहीं किया उसने। एनीवेज, तो क्या बोल रहे हो, वाई कंपनी लिमिटेड इश्यूड 10,000 12% डिबेंचर्स ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ ₹60 lakhs। नॉमिनल वैल्यू 60 lakhs है, क्वांटिटी 10,000 है, तो 60 lakhs को डिवाइड कर देने का 10,000 से, तो मेरे ख्याल से हर एक वैल्यू कम्स टू 600 रुपीज। दैट इज योर फेस वैल्यू पर डिबेंचर। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट में लिखा एक वेंडर को इश्यू किया फॉर परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट वर्थ ₹13 lakhs और 15 lakhs नॉमिनल वैल्यू है डिबेंचर्स का। तो पहला बात समझो कि इसका मतलब क्या है, तुमने 13 लाख का एसेट खरीदा और 15 लाख का डिबेंचर दिया, ऐसा बोलते हो। तो पहला आपने 13 लाख का एसेट खरीदा, उसका एंट्री करो, यानी एसेट डेबिट टू वेंडर करो 13 लाख रुपीस। फिर आप सोचो, अरे 13 लाख का एसेट में खरीदता है और 15 लाख का डिबेंचर में दे रहा है, इसका मतलब क्या है, डिबेंचर में सस्ते में दे रहा है। डिबेंचर में सस्ते में दे रहे मतलब डिस्काउंट है। आई बात समझ में, सस्ते में दे रहे मतलब डिस्काउंट है। तो सेकेंड वाला एंट्री विल बी वेंडर अकाउंट डेबिट 13 lakhs, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 2 lakhs, 12% डिबेंचर्स 50 lakhs, ये उसका एंट्री होगा। थर्ड वन, ओपन टू सन्ड्री पर्सन्स एट 90% ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ ₹30 lakhs। तो 30 lakhs नॉमिनल वैल्यू है, इसका 90% कीजिए, मतलब 27 लाख रुपए में उसने इश्यू किया है। सो बैंक डेबिट 27 lakhs, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 3 lakhs टू 12% डिबेंचर्स 30 lakhs, ये उसका एंट्री होगा। कर को दिया है एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी फॉर अ लोन ऑफ ₹14 lakhs, 15 lakhs नॉमिनल वैल्यू। तो लोन लिया 14 lakhs का, उसका एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। और बाकी का जो 15 लाख का डिबेंचर दिया एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी, इसके साथ 2 चॉइस रहता है। चॉइस नंबर 1, आप या तो कुछ एंट्री करो ही मत। चॉइस नंबर 2, आप एंट्री करो और एंट्री लिखो डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, करेक्ट, बट बेट नॉट टू पास एन एंट्री, बिकॉज आईसीआई हमेशा मानता है कि मेथड 1 बेहतर है, कि एंट्री नहीं करना चाहिए। सो उसका आंसर्स आप ऐसे प्रेजेंट करोगे, दिस विल बी योर डिबेंचर्स का आंसर्स टू लुक लाइक दिस। और नीचे देखो नोट भी लिखा है कि नो एंट्री इज मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द कंपनी व्हाइल मेकिंग इश्यू ऑफ सच डिबेंचर्स। सिर्फ बैलेंस शीट में आप जब भी लायबिलिटी में लोन का नीचे ब्रैकेट में दिखाने का कि दिस लोन इज सिक्योर्ड अगेंस्ट कोलैटरल सिक्योर्ड अगेंस्ट इश्यू ऑफ सो नंबर ऑफ डिबेंचर्स। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6B का डिस्कशन। अभी लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, डिस्कस द फैक्टर्स टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन फॉर कैलकुलेशन डेप्रिसिएशन। अगेन ये मॉड्यूल में है, डेप्री का 3rd पेज से मिलेगा आपको मॉड्यूल में। तो फैक्टर्स है, कॉस्ट ऑफ द एसेट है, यूजफुल लाइफ है, और स्क्रैप वैल्यू एक्सपेक्टेड एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ। ये 3 फैक्टर्स है, तीनों के बारे में 4-4 शब्द लिखना है आपको कि कॉस्ट मतलब क्या होता है,
यूजफुल लाइफ मतलब क्या होता है और स्क्रैप वैल्यू का मतलब क्या होता है, ये ना होगा उसमें, वो आपको मॉडल से मिल जाएगा. So this was your discussion of your November 2020 CA Foundation examination paper. So it got very clear in this that majority of the questions has come straight from ICAI का study material. So it is getting proven again and again कि ICAI का study material is very good for preparation of your CA examinations. So I hope this video was very useful to you. ये वीडियो के साथ साथ मैं ये आंसर का PDF का भी लिंक ज़रूर शेयर करूँगा आप लोग के साथ, वो भी देख लीजिएगा. Thank you very much. God bless you all. For many more videos like this, please subscribe to our YouTube channel, our Telegram channel, and keep visiting our website as well. Thank you very much. God bless you all. Bye.